Okay. First of all, equilibrium has two parts. One is chemical equilibrium and other is ionic equilibrium. So chemical equilibrium is an equilibrium which is established for a chemical reaction between the reactants and products. So एक एग्जांपल के साथ I'll discuss all the aspects like question किस हिसाब से आ सकते हैं. So let's consider the famous Haber's process, that is nitrogen reacting with hydrogen in the ratio 1:3, reversibly giving you 2 moles of ammonia, all in the gaseous state. तो सबसे पहले equilibrium establish होने के लिए the common conditions are: first, equilibrium is established only for reversible reactions. Secondly, taking place in a closed container at a constant volume. And at equilibrium, the rate of the forward reaction and the rate of the backward reaction becomes equal, and the concentration of the reactants and the concentration of the products become constant. Remember, the rates of the forward and backward reaction becomes equal, but the reactant and product concentration become constant, meaning they do not change with time. Okay. Also, while considering the equilibrium concentrations, we consider the equilibrium concentrations only for gaseous and aqueous substances. मतलब pure solids or pure liquids का equilibrium concentrations are never considered because their concentrations actually do not change with time. तो जो भी gaseous substances है या aqueous है, उन्हीं का equilibrium concentrations हम consider करते हैं. That's very important. ठीक है. Now, equilibrium constants जो होते हैं, that could be represented by Kc in terms of concentration or Kp in terms of partial pressures. And any equilibrium constant is always given as a ratio of the product upon the reactant concentrations. So in this case, the Kc would be defined as ammonia concentration upon nitrogen into hydrogen concentration raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. So ammonia would be squared, nitrogen raised to 1 and hydrogen raised to 3. And the same equilibrium constant in terms of partial pressure would be represented as partial pressure of ammonia upon the partial pressure of nitrogen into hydrogen, and then raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. So this is how you write Kc and Kp. Thirdly, Kp and Kc का जो relation है, that is Kp equal to Kc into RT raised to delta Ng. Kp equals Kc into RT raised to delta Ng. But delta Ng is the number of moles of the gaseous products minus the number of moles of the gaseous reactants. Only gaseous substances are considered. So 2 is the total mole of the product and 4 is of the reactant. So delta Ng becomes -2, and that's why Kp will be equal to Kc into RT raised to -2. ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर आते हैं. और एक चीज, अगर यूनिट पूछा जाए, then the unit is simply represented as molarity or mole per dm cube, mole per dm cube raised to delta Ng. So इस केस में डेल्टा Ng आपका -2 आ रहा है. ठीक है, तो यूनिट के लिए और Kp Kc का रिलेशन के लिए डेल्टा Ng इज वेरी इंपॉर्टेंट. So here it will be the mole per dm cube the whole raised to -2. मतलब इसको ओपन अप करेंगे तो कहीं बार मोल रेस टू -2 dm रेस टू 6 इस फॉर्मेट में भी दिया जाता है. और इसका जो यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर का रेस टू डेल्टा Ng मतलब -2. So these are all the possible questions with regards to the equilibrium constant in terms of concentration, pressure, the relation between them and the units associated with them. एक रिएक्शन का समझ में आ गया, उसके बाद और कोई भी रिएक्शन आए, you should be in a position to understand. Next,
You might be asked to find the equilibrium concentrations if the equilibrium constant is given. मतलब अगर Kc की वैल्यू दी है और इनमें से कोई एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, वो अगर फाइंड करना है, तो यू बेसिकली प्रिपेयर द आइस टेबल. मतलब द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, द चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड देन फाइनली इक्विलिब्रियम पे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइस टेबल, इनिशियल, चेंज एंड एट इक्विलिब्रियम. So let's say we start with the concentration of nitrogen as A and hydrogen as B. So initially nitrogen का A molar है और hydrogen का B molar है, so here this will be 0. Now as the reaction proceeds in the forward direction, the ammonia concentration increases. So let's say the increase is 2x, stoichiometry के हिसाब से 2x. So hydrogen would decrease as 3x and nitrogen will decrease as 1x. जो भी stoichiometry है उसके हिसाब से आपको change consider करना है. So always remember the stoichiometry is always considered during the change. ठीक है. And finally equilibrium पे we have A minus x, the concentration of nitrogen, B minus 3x hydrogen concentration and 2x the ammonia concentration. ठीक है. अब आपको जनरली ए और बी का वैल्यू दिया रहता है कि इनिशियली सो एंड सो इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, एंड इक्विलिब्रियम पे जो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन है लेट्स से वो 0.4 मोलर है. ठीक है. अब जैसे ही 2x के बराबर 0.4 है तो यहां से आपको अननोन x मिल जाएगा, दैट इज 0.2 मोलर. ठीक है. ए और बी अगर पता है तो इन दोनों की वैल्यूज भी आपको मिल गई. तो नाउ यू नो ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम. तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर फाइंड करना है, जस्ट टेक दिस रेशियो एंड सॉल्व इट. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर आइस टेबल. ठीक है. अब मान लो अगर यही चीज मोल्स में दिया हो, ठीक है, और यहाँ पर V लीटर कंटेनर में ये रिएक्शन कैरी आउट किया है, तो ये सारे मोल्स हैं. तो इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट करने के लिए यू जस्ट डिवाइड बाय द वॉल्यूम. सो A माइनस एक्स अपॉन V हो जाएगा, B माइनस 3x अपॉन V हो जाएगा एंड 2x अपॉन V हो जाएगा. So if moles are given, divide by volume. If concentration is given, then obviously volume का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली मोल पर DM क्यूब में दिया हुआ है. ठीक है. अब अगर ये मोल्स ही है तो अगर Kp ढूंढना है तो वी रिक्वायर द पार्शियल प्रेशर. अब पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं? The partial pressure of nitrogen is equal to mole fraction of nitrogen into the equilibrium or the total pressure. Equilibrium पे इस पूरे Haber's process का जो प्रेशर है that would be the equilibrium or also called as the total pressure. अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन द टोटल मोल्स एंड देन इनटू पी इक्विलिब्रियम करेंगे. अब आप देखोगे तो अगर मैं मोल्स कंसिडर करूं तो नाइट्रोजन का A माइनस एक्स है अपॉन इसका टोटल होगा A प्लस बी एंड माइनस 2x एंड देन इनटू पी इक्विलिब्रियम. सिमिलरली आप पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया फाइंड कर सकते हो, एंड ये पार्शियल प्रेशर्स अगर यहाँ पे सबमिट करोगे, सॉरी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको Kp का वैल्यू मिल जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. Fine. Yes, And sir. then with respect to this particular chemical reaction at equilibrium, the factors which could affect the concentrations of the reactant or the product and shift the direction as forward or backward is studied by Le-Chatelier's principle, यानी the application of LCP. तो LCP में 4 major factors हैं. पहला concentration. So if I increase the concentration of the reactants, more and more reactants will react to form the product. In that case, the equilibrium will shift in Forward direction. forward direction. Similarly, अगर मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करूं, जैसे अमोनिया यहां पर बन रहा है, इफ आई गो ऑन रिमूविंग अमोनिया, देन It will shift in the forward इट again. विल अगेन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट अगर कम होते जाएगा तो मोर एंड मोर रिएक्टेंट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आगे बढ़ेगा. इसलिए आइदर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज्ड और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज्ड,
equilibrium shifts in the forward direction. Vice versa, if reactant is decreased or product is increased, it will be moving in the backward direction. ठीक है. दूसरा temperature. Now the temperature का effect is studied depending on the reaction, whether it is endo या exo. If it is an endothermic reaction, then the reaction is favored at high temperatures. Endo is favorable at high temperature and exo is favored at low temperature. मतलब Haber's process की अगर बात करें तो here the delta H of the reaction is negative. मतलब the reaction is exothermic. So if it is exothermic in nature, then with the increase in temperature, the reaction will be favoring forward direction या backward direction? Backward. Because forward अगर exo है तो low temperature पे आगे बढ़ेगा और high temperature पे पीछे जाएगा. तो इसीलिए Haber's process is carried out at low temperature to shift the equilibrium in the forward to get more yield of ammonia. तो ये LCP का application with regards to temperature. ठीक है. तीसरा pressure. Pressure के लिए you have to just see the number of moles. If the number of moles from the reactant to product is decreasing, it will be favored at high pressure. मतलब इस केस में the number of moles of the product is 4 and it's changing to 2. तो 4 से 2 decrease हो रहा है. इसीलिए Haber's process is favorable at high pressure. अगर रिएक्टेंट का मोल्स से प्रोडक्ट के मोल्स में इंक्रीज है तो इट इज फेवरेबल एट लो प्रेशर. वाइस वर्सा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है जो हेबर्स प्रोसेस में हो रहा है, देन इट इज फेवरेबल एट अ हाई प्रेशर. ये सिंपल कंक्लूजन्स है, मोल्स के ऊपर आप देख लेना है. एंड दिस इज ओनली फॉर गैसियस मोल्स. सॉलिड्स या लिक्विड्स अगर आएगा तो कंसिडर नहीं करना है. एंड फोर्थ इज कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट doesn't differentiate between the forward and the backward direction because catalyst increases the rate of the forward and the backward reaction to the same extent. तो catalyst सिर्फ इतना ही काम करता है that it helps to achieve the equilibrium faster. It doesn't change anything or the direction को affect नहीं करता है, but it definitely helps the equilibrium to achieve faster. Then एक और concept यहाँ पर आता है, that is addition of inert or a non-reactive gas like helium या neon. इसमें भी दो cases हैं, at constant volume and दूसरा at constant pressure. कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर. अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर वेयर द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो जब आप एक्सटर्नली इनर्ट गैस को ऐड भी करोगे और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो देयर विल बी नो इफेक्ट. बट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस को ऐड किया तो इनर्ट गैस की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, and equilibrium will shift in a direction where the number of moles are inert gas add करेंगे तो the partial pressures will increase. तो overall pressure अगर बढ़ेगा तो volume घटेगा मतलब जो number of moles per unit volume है वो decrease होगा. इसीलिए उसको compensate करने के लिए it will shift in a direction where the number of moles are higher. N is the number of moles and it should be higher. मतलब मान लो Haber's process में अगर inert gas like helium ऐड किया, ठीक है, and at a constant pressure बोला है, तो it is going to shift in a direction जहां पर moles ज्यादा है, इसलिए इस केस में backward direction में shift हो जाएगा. So this is the summary of Le-Chatelier's principle with respect to chemical equilibrium. तो बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इतना ही पार्ट है केमिकल रिएक्शन के लिए,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, यूनिट्स क्या है, रिलेशन क्या है, और एलसीपी का एप्लीकेशन कैसे रिलेट करना है. दैट्स इट. फाइंड क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Then comes the ionic equilibrium. Now, ionic equilibrium starts with the acid-base theories. उनमें सबसे important theory जो है, that is the Lorentz-Bronsted theory. ठीक है, तो सबसे पहले I'll take an example of H3PO4, which is phosphoric acid, and it's a tribasic weak acid. It's a tribasic weak acid, मतलब 3 H+ dissociate करता है. मतलब this dissociation will take place in 3 stages. First step में H+ रिलीज होने के बाद it will form H2PO4 negative. Next step में H2PO4 negative will further dissociate H+ giving you HPO4 minus 2, and the HPO4 minus 2 will dissociate the third H+ with the anion PO4 minus 3. Now, since it's a weak acid, the dissociation constant of the acid will be the equilibrium constant, which is given by Ka, dissociation constant of acid. और क्योंकि ये 3 stages में dissociate हो रहा है, each of the stage will have different dissociation constants. Now, obviously, a neutral acid would dissociate the H+ in larger concentration as compared to the charged conjugate bases, meaning K1 जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है किसी भी पॉलीबेसिक एसिड का हमेशा बड़ा होगा as compared to Ka2 as compared to Ka3 and so on. This is the general relation for a polybasic acid. Similarly, अगर मैं इसका net reaction लिखूं तो when I add up the reaction, the common species, the intermediates can get cancelled. तो ये वाला anion cancel हो जाएगा और ये वाला anion भी cancel होगा. And finally, मुझे मिलेगा H3PO4 completely dissociating, giving you 3H+ and PO4 minus 3. And the equilibrium constant, the dissociation constant of acid would be Ka, and this Ka will be equal to the products of each of the dissociation constants 1, 2 and 3. ठीक है, मतलब कोई भी पॉलीबेसिक एसिड का मल्टी स्टेज अगर डिसोसिएशन होगा तो when we add up the reaction, the equilibrium constants get multiplied. जब रिएक्शन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, इसलिए K will be equal to K1 into 2 into 3. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Then if I talk about the Bronsted, Lorentz-Bronsted वाला theory, जिसको simply Bronsted theory भी बोलते हैं, ठीक है, this is a proton theory. According to this theory, acid is a proton donor. Acid is a proton donor and base जो होता है वो proton यानी H+ acceptor होता है. Proton acceptor होता है. ठीक है, so let's consider a reaction between let's say calcium hydroxide and HCl. So the reaction will take place in the ratio 1:2, giving you calcium का chloride. एक मिनट, ये neutralization हो गया. Let's take a simple example of ammonia with HCl, giving you NH4Cl, ammonium chloride, which as a salt will dissociate as NH4+ and Cl-. अब इस रिएक्शन में अगर देखोगे तो HCl अपना प्रोटॉन दे रहा है तो इट इज एन एसिड, और अमोनिया प्रोटॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट्स अ बेस. सो अ प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड अ प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस. अब प्रोटॉन डोनेट करने के बाद HCl Cl- जो बनाता है दैट इज कॉल्ड इट्स कॉन्जुगेट बेस. तो एसिड का H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज या अनाइन बनता है that is a conjugate base. So this HCl and the Cl- are called acid base conjugate pairs.
acid base conjugate pairs indicated by the same number. Similarly, base प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो कटायन बनाता है that is its conjugate acid. तो यहाँ पर बेस 2 और एसिड 2 conjugate acid base pair है. तो a conjugate acid base pair always differs by a proton. अमोनिया और अमोनियम में प्रोटॉन का फर्क है, HCl और Cl माइनस में भी प्रोटॉन का फर्क है. ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो होता है जो प्रोटॉन से डिफर करता है. अब यहाँ एक शॉर्टकट बताता हूँ. जो कॉन्जुगेट बेस होता है इट कुड बी आइडेंटिफाइड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन. HCl का कॉन्जुगेट बेस कैसे ढूंढने का? H+ निकाल के. तो CBD का मतलब a conjugate base is identified by donating a proton. Similarly, अमोनिया का conjugate acid H+ एक्सेप्ट करने से मिला, तो conjugate acid H+ एक्सेप्ट करने के बाद मिलेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर H3PO4 कैन इट एक्सेप्ट H+ एज वेल एज डोनेट H+? क्या ये दोनों काम कर सकता है? No. नो, इट कैन ओनली Donate. डोनेट. तो यहाँ पर ये सिर्फ एसिड का काम कर सकता है, लेकिन H2PO4 माइनस कैन डू बोथ द थिंग्स. H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है. देने के बाद जो बनेगा दैट इज HPO4-2 और लेने के बाद वो बनाएगा H3PO4. हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो कई बार बोलते हैं कि H2PO4- का कॉन्जुगेट बेस क्या है? So a conjugate base is formed by donating a proton. So this will be its conjugate base and H3PO4 will be its conjugate acid. तो किसी भी पॉलीबेसिक एसिड में जो इंटरमीडिएट अनायंस होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट और एंड में स्पीशीज रहता है वो सिर्फ H+ दे सकता है या ले सकता है, वो दोनों नहीं कर सकता है. तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. तो स्टार्ट और एंड वाला रूल आउट है, इंटरमीडिएट वाला इज द आंसर. अंडरस्टूड? Yes, sir. Then if we talk about a weak acid, we know that it will dissociate partially into H+ and A-. Similarly एक weak base होता है तो वो dissociate करेगा partially as B+ and OH-. ठीक है, तो weak acid या weak base के लिए the equilibrium constants are K and Kb, and this K and Kb could be calculated by using the Ostwald's dilution law, which is K equal to alpha square C upon 1 minus alpha, और इसका फॉर्मूला भी सेम है, alpha square C upon 1 minus alpha, where alpha is the degree of dissociation. अब अगर बहुत ही वीक एसिड या वीक बेस होगा तो अल्फा बहुत छोटा होगा, तो 1 minus alpha अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है, तो K अप्रोक्सीमेटली अल्फा स्क्वायर C के बराबर होगा, and alpha the degree of dissociation will be equal to square root of K by C. So K being a constant, we get a relation that alpha the degree of dissociation is inversely proportional to square root of the concentration or directly proportional to the square root of dilution. मतलब जैसे concentration बढ़ेगा अल्फा घटेगा या डाइल्यूशन बढ़ने पर अल्फा बढ़ता है. इसको बोलते हैं Ostwald's dilution law, ODL, Ostwald's dilution law. सेम चीज आप Kb यानी वीक बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. देन वीक एसिड और वीक बेस के लिए द H+ concentration is found as N into alpha into C, where N is the number of H+ ions for a polybasic acid. जैसे HCl है तो 1 रहेगा, H2SO4 है तो 2 रहेगा, H3PO4 है तो 3 रहेगा, and so on. ठीक है, अल्फा is the degree of dissociation and C is the concentration of the acid. तो N alpha C. अब हमने Ostwald dilution law से देखा that alpha is square root of K by C, तो वो डाल दिया.
तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला मिल के आएगा n रूट ऑफ k इंटू सी। तो अगर अल्फा दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, k दिया है तो थर्ड फॉर्मूला यूज करो, थर्ड लाइन का। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द H प्लस। नाउ दिस इज फॉर अ वीक एसिड। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो व्हाट इज अल्फा फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड? The degree of dissociation for a strong acid is 1, क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो H प्लस सिर्फ NC के बराबर होगा, मतलब जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है इनटू द बेसिसिटी ऑफ एसिड विल गिव यू द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ आफ्टर फाइंडिंग H प्लस यू कैन फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन बाय द फॉर्मूला नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H प्लस। अब मान लो आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है एस 3.2 इंटू 10 रेज टू -5। तो जब आप इस नेगेटिव लॉग को अंदर ले लोगे ना तो फाइनली आपको मिलेगा पावर माइनस लॉग ऑफ द नंबर। ये शॉर्टकट है। पावर क्या है 10 का? मैग्नीट्यूड वाइज 5, तो 5 माइनस लॉग ऑफ द नंबर, जो भी नंबर है उसका लॉग। ठीक है, अब लॉग्स में 3 लॉग्स आपको आने बहुत जरूरी है, log of 2, log of 3, log of 4, and these logs values are 0.3, 0.48 and 5 का log that is 0.7, 0.3, 0.48 और 0.7। क्योंकि ये 3 लॉग्स अगर आपको याद है तो 2 के सारे पावर्स का लॉग भी याद हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर विल बी 2 log 2, 0.6। सिमिलरली log 2 क्यूब जो कि log 8 देगा आपको, that will be 0.9 and so on। मतलब 2 के सारे पावर्स 4, 8, 16, 32, 64, 128। नाउ यू नो द लॉग्स ऑफ ऑल ऑफ देम। 3 का पता है तो 9, 27, 81 सबका पता होगा। 5 का पता है तो 5, 25, 125, 625 सबका हो जाएगा। सिमिलरली इनके बीच का कोई वैल्यूज आएगा तो एवरेज ले लो। 2.5 अगर आया तो इन दोनों का एवरेज 0.4 के आसपास, तो 2.5 का लॉग 0.4 ले लोगे। ठीक है, अब log 4 जो है वो आपको 0.6 मिलेगा, है ना, log 2 स्क्वायर। तो 3.5 के लिए आप इन दोनों का एवरेज लोगे तो 0.54 के आसपास है, वो ले लो। अब 3.2 है तो ये 0.48 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो लेट्स से ये 0.5 ले लेते हैं अप्रॉक्स। So the answer will be 4.5, indicating that the solution is acidic। ठीक है, तो ये तो एसिड की बात हो गई, लेकिन बेस के लिए ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, you'll find OH minus concentration with the same formula n alpha C या फिर n root of Kb into C, and then आप POH find करोगे as negative log to the base 10 OH minus, and through that आप pH find कर लोगे as 14 minus POH, because pH plus POH जो होता है that is equal to 14। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गया कॉन्सेंट्रेशंस और pH वैल्यूज को फाइंड करने वाला। अब टेम्परेचर का इफेक्ट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो the solution will dissociate more, so the H plus and the OH minus concentration will increase। अब मैं ये वाटर, प्योर वाटर के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्योर वाटर के लिए द आयोनिक प्रोडक्ट Kw इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। प्योर वाटर के लिए Kw which is the ionic product of water H plus into OH minus, तो इसका वैल्यू 10⁻⁻14 होता है, बट ओनली एट 298 केल्विन। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तो ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से pH एंड POH बोथ वुड डिक्रीज बाय द सेम एक्सटेंट। एंड अगर H प्लस और OH माइनस बढ़ता है तो Kw भी बढ़ेगा। तो यहां से क्या समझा, दैट Kw इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा एंड pH और POH जो है वो घटेगा, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH और POH। दिस टू रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो pH स्केल होता है 0 to 14, दैट इज ओनली एट अ टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन।
अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो पीएच का स्केल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज एट 90 डिग्री सेल्सियस द Kw विल इंक्रीज एंड द पीएच स्केल विल डिक्रीज, श्रिंक हो जाएगा। तो उस केस में लेट्स अज्यूम कि जो पीएच स्केल है वो 0 से 12 हो जाएगा। अब इस केस में pH equal to 6 will be considered as neutral, whereas pH equal to 7 would be considered as Basic. basic. बट वही चीज अगर 298 केल्विन की बात करें तो ऑब्वियसली pH equal to 7 वहां पर न्यूट्रल लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर टेम्परेचर को रिलेट करते हुए आपको pH वैल्यूज दी जाएगी एंड यू हैव टू कंसिडर और आइडेंटिफाई वेदर इट्स एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। फाइन विद दिस? Yes, sir. Now, after this, a very important topic comes, that is hydrolysis of salts. Hydrolysis of salts. मतलब the salts का breakdown using the ions of the, the breakdown of water using the ions of the salt is called hydrolysis. Now, जो salt है वो general form में Ba लिया जाता है। Now, Ba का एक reason भी है। Ba salt जब टूटेगा तो it will form a cation B plus and anion A minus. तो B plus refers to a base का cation, क्योंकि OH minus देने के बाद cation बनाता है, और A negative acid anion indicate होता है, या acidic radical भी बोलते हैं। तो B is for base and A is for acid, that is why we represent the salt as a Ba. अब ये Ba जब water के साथ react करेगा तो there are two possibilities. Either the cation can break the water or the anion can break the water. अगर cation ने water का breakdown किया तो it will form BOH and H plus. This type of hydrolysis is called cationic hydrolysis. cation ने hydrolyze किया तो cationic hydrolysis, ठीक है। और ये cationic hydrolysis की वजह से the concentration of the H plus is getting increased, so the solution will become acidic and the pH value will go Down. below 7. Similarly, anion ने अगर हाइड्रोलाइज किया तो वीक एसिड HA बना देगा और OH माइनस देगा। तो यहाँ पर अनायोनिक हाइड्रोलिसिस जब होगा तो the OH नेगेटिव concentration increases and the pH also will increase, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 केसेस आ सकते हैं सॉल्ट्स के। फर्स्ट, द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। Now, if you have a salt like NaCl, it's a salt of NaOH and HCl, which is a salt of a strong base and a strong acid. तो उसके आयन अगर वाटर से रिएक्ट कर भी लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, जो कि वापस टूट के आयंस बना देगा। तो उस केस में वाटर का ब्रेकडाउन होता ही नहीं है। That is why for a salt of a strong acid and strong base, the hydrolysis doesn't take place. In that case, the H plus concentration and the OH minus concentration always is equal, and the pH is equal to 7, and the solution remains neutral. There's no hydrolysis. So ऐसा question आता है, which of the following salts do not undergo hydrolysis? So you have to just find the salt of a strong acid with a strong base. NaNO3 हो गया, NaCl हो गया, K2SO4 हो गया। तो ये सिंपली आपके आंसर्स हो जाएंगे फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब केस 2, वी हैव अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस। तो अगर वीक बेस है तो विच आयन विल बी इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस? बेस वीक है। The acid will be involved. A. ना 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 ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो अनायन पानी के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग एसिड ही बना देगा, जो कि वापस टूट जाएगा। तो उसने वाटर को तोड़ा ही नहीं। याद रखो, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द वीकर कंपोनेंट, चाहे वो एसिड हो या बेस हो।
हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब ओनली एंड ओनली बाय द वीकर कंपोनेंट। तो यहां पर कौन डिस्टर्ब करेगा? weak base. वीक बेस। तो B. यहां पर बेस का कटायन ने पानी को तोड़ा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ कटायोनिक हाइड्रोलिसिस। As already discussed कि cationic hydrolysis में the H plus concentration would be dominating OH minus. In that case, the pH will be less than 7 and the solution will be acidic. Acidic. See, equilibrium disturb weaker ने किया, but solution का जो nature है वो stronger component ने decide किया। Simple सी बात है, हाँ कि नहीं? Yes. अब Yes, इसमें sir. 3 रिलेशंस है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट will be equal to Kw, the ionic product of water, upon the weaker component Kb. KH is equal to Kw by Kb. Then the H plus concentration could be found as N into H into C. जैसे हमने वीक एसिड वीक बेस के लिए N अल्फा C रखा था, वैसे यहाँ पर NHC रखते हैं। H is the degree of hydrolysis and the degree of hydrolysis is equal to root of KH by C. ये फॉर्मूलाज देखोगे तो एग्जैक्टली सिमिलर है ऑस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ के जैसा। तो इसमें मैं यहां पर लिख दूंगा n रूट ऑफ के एच इंटू सी। ठीक है, अब यहां पर ये n का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो जस्ट आप HC से रिलेट करोगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। HC और यहाँ पर रूट ऑफ के एच इंटू सी, और के एच इन टर्न क्या है अपना? रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी। तो ये हो गया H प्लस का फॉर्मूला। और फिर आप जब यहाँ पर नेगेटिव लॉग H प्लस लोगे तो पीएच मिल जाएगा। तो फाइनली एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस, क्योंकि पीएच 7 से कम है। अब देखो शॉर्टकट बता रहा हूँ, 7 माइनस माइनस। अब माइनस के बाद यहाँ पर आता है हाफ पी के बी 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 क्यू, क्योंकि वीक बेस है, एंड माइनस हाफ लॉग सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट टू द बेस 10। तो 7 माइनस माइनस एंड फिल इन द ब्लैंक्स में हाफ पीकेबी हाफ लॉग सी इंक्लूड कर लो। तो अगर ये समझा है तो केस नंबर 3, यू हैव अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ विच हाइड्रोलिसिस इज दिस? Anionic hydrolysis. द वीक एसिड, एसिड का अनायन, तो अनायन ने पानी को तोड़ा, तो अनायोनिक हाइड्रोलिसिस। एंड ऑन अनायोनिक हाइड्रोलिसिस द H plus concentration would become Less than OH. Less. less than OH minus, the pH will go Higher. higher than 7, solution will become Basic. basic. Now the hydrolysis constant would be given as Kw by Ka. Ka, and H का फॉर्मूला तो सेम ही है, it's root of KH upon C. Then here, because of the basic concentration, would find OH negative, which will be equal to HC or root of KH into C, या फिर root of Kw by K A into C. और फिर यहाँ पे POH फाइंड करोगे एंड 14 में से माइनस करोगे। बट फाइनली मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूं। अब देखो यहाँ पर द pH विल बी इक्वल टू 7, आगे क्या आएगा? ग्रेटर देन 7 है, So plus plus. प्लस प्लस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? हाफ pKa. पीके, एंड लास्ट का पार्ट सेम ही है, हाफ लॉग सी। खत्म। फॉर्मूला एकदम सिंपल है याद रखने में। वहां पे 7 माइनस माइनस हाफ पीके बी हाफ लॉग सी, यहाँ पे 7 प्लस प्लस हाफ पीके ए और हाफ लॉग सी। क्लियर? Yes, sir. एंड देन केस नंबर 4 है वीक एसिड एंड वीक बेस का। अब वीक एसिड वीक बेस में we have to understand whether both the acids and base are equally weak or one is weaker, more weaker as compared to other. तो वो चीजें डिसाइड करता है आपका K और Kb वैल्यू। और 3 केसेस आ सकता है। केस नंबर 1, K equal to Kb. Now when both are equally weak, the solution will be
न्यूट्रल, सिमिलर टू केस 1, स्ट्रॉन्ग वाला। बट अगर के बड़ा होगा Kb से तो सोल्यूशन एसिडिक, और के छोटा होगा Kb से तो Basic. बेसिक। Now in either of the cases the KH is equal to Kw by, अब देखो पीछे हमारे पास Kb आया क्योंकि वीक बेस था, यहाँ Ka आया क्योंकि वीक एसिड है। अब यहाँ दोनों ही वीक है तो क्या आएगा, दोनों भी आ जाएगा, K और Kb। एंड दूसरा यहाँ पर द KH इज इक्वल टू H², या फिर द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू रूट ऑफ KH। ऑब्जर्व करो यहाँ पर C वाला टर्म, कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म नहीं है। तो कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैव द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। So you have to identify a salt of a weak acid and a weak base. And इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अमोनियम एसिटेट या फिर अमोनियम साइनाइड। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस आपको ढूंढने हैं फॉर द क्वेश्चंस wherein degree of hydrolysis is independent of concentration is asked. And finally, the pH value here is simply found as 7 plus half of pKa minus pKb. डिपेंडिंग कि आपका Ka Kb क्या वैल्यूज है, pH 7 आ सकता है या उससे ज्यादा या कम आ सकता है। ठीक है, बट फॉर्मूला तीनों केसेस में यही अप्लाई होता है, हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। दैट्स इट, ये आपका हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का सिंपल समरी। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स के बाद वी हैव बफर सॉल्यूशंस। Obviously well known concept है कि buffer solutions are those which are used to maintain the pH or which resist any changes in the pH. दो टाइप के बफर्स अपने पास होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक समझ लो तो बेसिक सिंपल है। Now acidic buffer is formed by mixing equimolar solution of a weak acid and its salt with a strong base. Equimolar solution of a weak acid में ले लो acetic acid and its salt with a strong base, यानी इसका salt NaOH के साथ ले लेते हैं सोडियम एसिटेट। तो अब एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करता है गिविंग यू एसिटेट एंड H+, सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करता है एसिटेट और Na+ के लिए। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में इफ आई ऐड H+, then it will be completely consumed by the conjugate base of the weak acid which is acetate ion. ठीक है, तो एसिड को खाने वाला बेस है दैट इज एसिटेट, और अगर OH- डालेंगे तो इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द एसिटिक एसिड गिविंग यू सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिटेट एंड H2O। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बफर्स मेंटेन द pH or resist the large changes in the pH. And finally, the pH of this type of solution is found by the formula pK plus log to the base 10, concentration of the salt over acid. Salt over acid. तो जो भी वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया होगा वो यहाँ पर डालना है, और उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर डालना है। Now, अगर concentrations of the salt or acid equal हो जाते हैं तो this ratio becomes equal to 1, and if this becomes equal to 1, log 1 will become equal to 0, so pH becomes equal to pKa, and pKa एक constant value होता है। तो ऐसे टाइप के बफर्स जिसमें concentration सेम होता है उसका pH constant हो जाता है, so such type of buffers are considered as best buffer. कई बार आपसे पूछा जाता है बेस्ट बफर होने के लिए कंडीशन क्या है,
या उसका pH क्या रहेगा। तो K वैल्यू दिया होगा, pK ढूंढ लो, वही आपका pH हो जाएगा, बिकॉज बेस्ट बफर का कंडीशन ही ये है। खत्म। ठीक है, सेम चीज आप बेसिक बफर के लिए अगर अप्लाई करो तो यहां पर चेंजेस क्या होगा। बेसिक बफर इज फॉर्म्ड बाय इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक Base. and its salt with a Strong. Strong acid. strong acid। तो बेसिक बफर का अगर एग्जांपल मैं पूछूं तो वीक बेस में सबसे कॉमन एग्जांपल हमेशा याद रखने का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4OH होता है, एंड इसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl इज NH4Cl। अब सेम मैकेनिज्म यहां पर भी फॉलो होगा, और बेसिक बफर के लिए POH फाइंड करेंगे विच विल हैव द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा सोचो। pKb प्लस log to the plus base 10 10. Salt upon base. salt upon concentration of the base का था। तो एक पार्ट अगर समझ गया तो रिलेटेड पार्ट से बाकी सारे। So this was the concept of buffer solutions. And the last concept in the ionic equilibrium is solubility product. Solubility product. अच्छा, by the way, इसमें अगर आप देखो तो the acetate ion is coming from the weak acid as well as from the salt. So can I say this ion is common in both the solutions? Yes. Now, because of this common ion, the acetate will have the tendency to combine with the H plus and form back acetic acid. In that case, the equilibrium is shifted in the backward direction. मतलब कॉमन आयन अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो जो वीक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है उसको और सप्रेस करेगा या बढ़ाएगा। सप्रेस करेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं दैट कॉमन आयन इफेक्ट मेक्स द वीक एसिड और बेस इवन वीकर। जो वीक है उसको और भी वीकर बना देता है, उसके डिसोसिएशन को फर्दर सप्रेस करता है, उसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। Now solubility product. So let's consider I have a salt of the type AXBY, which when dissolved in water will dissociate partially, क्योंकि ये sparingly soluble salt हम consider करते हैं, तो partial dissociation में XAY plus आएगा और BX minus, sorry क्या है YBX minus. So if the solubility of this salt is S, AY plus का solubility will be XS and YBX minus यानी BX minus अनायन का YS होगा। ठीक है, तो the equilibrium constant for such type of equilibrium is called as the solubility product and it's represented as KSP and given by the concentration of the cation into the anion. तो अनायन का concentration AY plus and cation का AY plus और अनायन का BX minus। अब AY प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है? एक्सेस एंड अनायन का आ रहा है YS एंड देन वी आल्सो रेज टू द पावर व्हिच इज इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट x एंड y। तो फाइनली जब इसको ओपन करेंगे तो वी गेट x रेज टू x, y रेज टू y एंड s रेज टू x प्लस y। तो अगर हमें कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है एंड इफ वी नो द x एंड y for the salt, we can directly find the KSP and S का relation। ठीक है, तो solubility product में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा कॉमन है। ठीक है, एक और बात यहाँ पर, if I consider the product of the concentration AY plus and the BX minus raised to X and Y at any time but other than equilibrium, at any time other than equilibrium, then this product of concentration of the ions is called as ionic product, IP, ionic product।
ठीक है, तो अब यहाँ पर KSP और IP का 3 रिलेशंस आ सकता है. So let's say this is my KSP value. So if IP is IP is equal to KSP, then the reaction is already at Equilibrium. equilibrium. Case 2, अगर IP greater है KSP से, then the IP will try to become equal to KSP, because this is an equilibrium condition which is a stable condition. तो IP का ज्यादा होना मतलब कंडीशन अनस्टेबल है. स्टेबल होने के लिए वो KSP की तरफ अप्रोच करेगा. अब KSP की तरफ अप्रोच करने के लिए द IP का वैल्यू मस्ट Backward. डिक्रीज. तो उस केस में रिएक्शन पीछे जाएगा. अच्छा, पीछे जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी Decrease. डिक्रीज होगी. एंड अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा तो द सॉल्ट विल स्टार्ट गेटिंग, Precipitated. Crystalline. so this is called condition of precipitation, IP greater than KSP. Similarly, अगर IP लेस है KSP से तो सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व करेगा. ज्यादा डिसॉल्व करेगा तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिपिटेशन कभी भी होगा ही नहीं. द प्रेसिपिटेशन नेवर अकर्स. तो कई बार आपको प्रेसिपिटेशन के कंडीशन के रिलेटेड पूछते हैं, यहाँ पे IP और KSP कंपेयर करो एंड यू गेट द रिजल्ट वेदर इट विल प्रेसिपिटेट और नॉट. Then the salt and the KSP versus solubility का relation. अब मान लो अपने पास AB टाइप का सॉल्ट है जैसे AgCl. तो the X and the Y value is 1 and 1. So if you apply in the formula 1:1, 1:1 and S⁻1 + 1, so KSP will become equal to S square या S equal to root of KSP, right? Then आपके पास A1B2 या A2B वाला सॉल्ट अगर आया तो आइदर वे X और Y की वैल्यू 1 और 2 है. तो उस केस में द KSP विल बिकम इक्वल टू 4S³. देन A3B2 या फिर A2B3 वाला सॉल्ट अगर आया तो इस केस में 3:3, 2:2 मतलब 108 आ जाएगा. एंड यू विल गेट द रिलेशन एज 108 S⁵5. एंड देन AB3 या फिर A3B वाला सॉल्ट आया तो द KSP विल बी इक्वल टू 27 S⁴. बस ये 4 ही टाइप के सॉल्ट्स आपको दिए जाते हैं जिसमें KSP और S का रिलेशन फाइंड करना होता है. समझा? Yes. So this is the complete summary of equilibrium, covering all the concepts and the possible MCQs from which they might be asked. Fine. Yes, sir. Yes. Yes. Sir. Then moving to the thermodynamics. So thermodynamics starts with the basic definitions of system, surroundings, boundary, then the types of system as open, closed, isolated, then the thermodynamic properties, extensive, intensive, state function, path function. ठीक है, and then finally processes शुरू होता है. तो वहां से actually main part of the chapter start होता है. So I'll directly start with the types of the processes in the thermodynamic system. So for that, I'm simply drawing a graph of pressure versus volume. So a thermodynamic process in which the pressure is constant is called Isobaric. isobaric. A process in which the volume is constant is called Isochoric. isochoric. Pressure and volume are linearly correlated. मतलब P is inversely proportional to V or PV is a constant, then this is Isothermal. isothermal. And the fourth is adiabatic, where pressure and volume are related as PV raised to gamma. P raised to gamma is a constant.
So this is adiabatic. Now isothermal और adiabatic में which is steeper? Adiabatic. परफेक्ट. तो अगर आपको दो ग्राफ्स ऐसे दिया है तो ऊपर वाला आइसोथर्मल का है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशन के साथ, नीचे वाला एडियाबैटिक है दैट इज पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाला रिलेशन. ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिलेशंस में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ऑलवेज इक्वल टू Gamma times slope of isothermal. गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल. ठीक है. So with regards to processes, this first part is important. Then we have the concept of reversible and the irreversible processes. और उसमें work done का expressions है. ठीक है. तो if I talk about work done in an isothermal irreversible process, then it's given by formula. Irreversible isothermal process, it's minus P external into delta V और माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. अब यहां पर अगर एक्सपांशन रहेगा तो V2 इज ग्रेटर देन V1. इन दैट केस द वर्क डन इज नेगेटिव. सो वी से द वर्क ऑफ एक्सपांशन इज ऑलवेज नेगेटिव. एंड अगर कॉम्प्रेशन होगा तो V2 कम हो जाएगा V1 से, एंड उस केस में डेल्टा V लेस देन 0 और W पॉजिटिव हो जाएगा. तो वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है. बट वही अगर वर्क डन कंसिडर करते हैं इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, then it's given as negative 2.303 nRT log of V2 by V1. log of V2 by V1. या फिर V2 by V1 की जगह we can take P1 by P2 if the pressures are given. So these are the two important relations. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ ग्राफ के साथ we will understand some important concepts. Let's consider the case 1 of expansion. तो अगर expansion की बात करें then we have two cases, expansion for reversible process and expansion for irreversible process. ठीक है. तो ये irreversible ले लेते हैं और ये reversible ले लेते हैं. This is P versus V का ग्राफ in both the cases. Now, irreversible process जो होता है that is carried out at a constant pressure, and reversible में pressure का change जो होता है वो काफी small रहता है. बराबर. तो for the expansion we know that the final volume would be greater than the initial volume, right? Yes. तो अब अगर मैं ये एक इनिशियल पॉइंट कंसिडर करूं दैट इज विद द प्रेशर P1 एंड द वॉल्यूम V1, तो जैसे जैसे गैस एक्सपांड करेगा उसका फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा, मतलब द प्रोडक्ट PV विल डिक्रीज. सो लेट्स से सेकंड पॉइंट ये है. सो एट दिस फाइनल प्रेशर इफ आई कंसिडर द चेंज इन द वॉल्यूम फ्रॉम V2 टू V1, then the area under the curve is the work done during expansion for irreversible process. Similarly, अगर ये चीज मैं reversible process के लिए देखूं, then the reversible process is carried out in infinite number of steps. तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एंड ज्वाइन करने के बाद एरिया अंडर द कर्व कंसिडर करते हैं टू गेट द वर्क डन इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. तो यहां से अगर आप एरिया अंडर द कर्व को कंपेयर करो तो रिवर्सिबल का वर्क इज More. मोर देन द इरिवर्सिबल वर्क, एंड दिस इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक्सपांशन का वर्क तो नेगेटिव होता है, मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है.
अब यही चीज अगर कॉम्प्रेशन में देखें, V2 इज लेस देन V1, कॉम्प्रेशन के केस में ये वाला जो पार्ट है वो ज्यादा आ जाएगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि फाइनल V2 वाला पार्ट जो है वो आपका अलग पॉइंट पे आएगा, राइट? तो उस केस में कॉम्प्रेशन का जो वर्क एरिया अंडर द कर्व है, वर्क डन, वो काफी ज्यादा आएगा फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसलिए कॉम्प्रेशन में जो रिवर्सिबल वर्क है वो कम होता है एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल वर्क। So these are the two important relations which you should always remember. Clear? Yes. Then first law of thermodynamics से कुछ important correlations. Delta U equal to Q plus W is the first law of thermodynamics. So इसमें if I consider isothermal process, then isothermal में delta T 0 होता है, delta U भी 0 होता है, मतलब Q becomes equal to negative W. यानी the heat which is absorbed during isothermal process will be used to do the work on the surroundings. प्लस Q मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, माइनस W मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है। सो साइन कन्वेंशन थर्मोडायनामिक्स का काफी सिंपल है, whatever comes into the system is सिस्टम का गेन एंड दैट्स पॉजिटिव, मतलब हीट का एब्जॉर्ब होना या सराउंडिंग डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम, बोथ आर पॉजिटिव। बट एनीथिंग विच इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम इज द सिस्टम का लॉस, मतलब नेगेटिव, यानी हीट का इवॉल्व होना या सिस्टम सराउंडिंग पे काम करना, ये दोनों नेगेटिव होता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। आइसोथर्मल के बाद ए डायबेटिक प्रोसेस, कंडीशन इज Q इक्वल्स टू 0। Q इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा U W के बराबर होगा, मतलब द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी is due to the work which is done by the surrounding on the system, by the surrounding on the system। ये हो गया ए डायबिटिक का रिलेशन। देन आइसोकोरिक, डेल्टा V इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, वो भी 0 हो जाएगा, मतलब डेल्टा U becomes equal to Q। So the heat at the constant volume is nothing but the internal energy. Heat at constant volume is nothing but the internal energy. And the heat which is used to increase the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, that is Q upon delta T, becomes your heat capacity. So the heat capacity at the constant volume is called as CV. So CV का फॉर्मूला हो जाएगा QV upon delta T। लेकिन आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 होता है, तो जो C हीट कैपेसिटी है आइसोथर्मल का वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा T 0 होने पर ये पार्ट इन्फिनिटी पे जाएगा, और Q 0 होने की वजह से द ए डायबिटिक प्रोसेस का हीट कैपेसिटी is 0, C इक्वल टू 0 आ गया। And last is isobaric. So isobaric में we have the entire expression delta U equal to Q plus W, where Q will be referred as heat at constant pressure. So this QP in turn is delta U minus W, and W is minus P external delta V. तो आपका यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा U plus P external into delta V। तो ये जो है वो आपका QP के बराबर हो गया, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को फर्दर हम एक और टर्म से डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H। और यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है दैट विल बी हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर ओवर द डिफरेंस इन टेम्परेचर QP अपॉन द डेल्टा T, या फिर इसको डेल्टा H बाय डेल्टा T से भी रेफर कर सकते हैं। हीट कैपेसिटी वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है 4 केसेस? Yes. Yes, sir. Then further Cp and Cv का relation is Cp equal to Cv, sorry, Cp minus Cv equal to R, and जो गामा पॉइजन्स रेशियो होता है वो Cp by Cv होता है, जिसका वैल्यू अगर 1.66 है, मतलब the atomicity is
Single Mono. one. 1 मोनोएटॉमिक, फिर Monoatomic. 1.4 अगर आया तो Diatomic. Diatomic. और 1.33 आया तो Triatomic. Polyatomic. ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ आई कंसिडर द एडियाबेटिक प्रोसेस जहां पर गामा का इंपॉर्टेंस आ जाता है, पॉइजन रेशियो का इंपॉर्टेंस आ जाता है, तो फर्स्टली वी नो दैट PV रेज टू गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. Then the work done in the adiabatic process is given as P2V2 minus P1V1 upon gamma minus 1. P2V2 minus P1V1 upon gamma minus 1. और क्योंकि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में Q तो 0 होता है, तो जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होता है, तो डेल्टा U. और डेल्टा U इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी कैन बी गिवन एज NCV डेल्टा T. और CV को हम R अपॉन गामा माइनस 1 में रिलेट करते हैं, तो NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1. तो अगर ए डायबिटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन फाइंड करना है वेयर द गामा एंड द प्रेशर वॉल्यूम्स आर नोन, या फिर इंटरनल एनर्जी पता है, या CV दिया है, या फिर आपको सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है, तो इन चारों फॉर्मूला में से कोई भी उठा लो, आपको वर्क डन मिल जाएगा. और याद रखो कि फाइनल टेम्परेचर जो T2 है वो इरिवर्सिबल एडायबिटिक का हमेशा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल एडायबिटिक प्रोसेस. इरिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर is always greater than the reversible final temperature, irrespective of whether the process is expansion or compression, doesn't matter. Clear? Yes, sir. Yeah. तो ये सब रिलेशन के बाद थर्मोकेमिस्ट्री का फंडा आ जाता है, दैट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो इफ यू वांट टू फाइंड द डेल्टा H फॉर एनी रिएक्शन जहां पर इफ यू हैव द हीट्स ऑफ फॉर्मेशन गिवन और द हीट्स ऑफ कंबशन का डेटा गिवन और द बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन, तो तीन फॉर्मूलाज आपके पास है टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन. So delta H of any reaction will be equal to sum of enthalpies of formation of all the products minus sum of enthalpy of formation of all the reactants. But if the combustion data is given, then it will be enthalpies of combustion of all the reactants minus enthalpies of combustion of all the products. So reactant minus product. And अगर bond enthalpies दिया है, so it will be sum of bond enthalpies of all the reactants minus sum of bond enthalpy of all the products. थर्मोकेमिस्ट्री में आपको एंथैल्पीज फाइंड करना होता है, और वो एंथैल्पीज डायरेक्टली फाइंड करने का तीन कोरिलेशंस है. एक अगर फॉर्मेशन एंथैल्पीज दिया है, दूसरा कंबशन एंथैल्पीज, और तीसरा बॉन्ड एंथैल्पीज. ठीक है, इसी में वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हैसेस लॉ. हैसेस लॉ बोलता है कि एंथैल्पी किसी भी रिएक्शन का, चाहे वो एक स्टेप में करो, दो स्टेप में करो, या मल्टी स्टेप्स में करो, इट्स ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ कांस्टेंट. द एंथैल्पी इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट. जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है, कार्बन को अगर बर्न करते हैं, कंप्लीटली बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. Let's say the enthalpy is delta H1. But this reaction can be carried out in two steps, wherein we can burn partially carbon to give monoxide and then again burn to form carbon dioxide. The enthalpies for these steps is H2 and H3. Hess's law बोलता है कि एक स्टेप में डेल्टा H1 था और दो स्टेप्स में H2 और H3 था, तो the relation will be H1 equal to H2 plus H3. This is Hess's law. इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड. अगर उसको एक्सेस वाटर में डालें
तो वी गेट MgSO4 aqueous। बट अगर हम इसमें वाटर का लिमिट दे, मतलब MgSO4 को पहले 5H2O के साथ ऐड करें, वी गेट MgSO4.5H2O। देन फर्दर अगर वाटर एक्सेस में डालें, देन वी गेट द aqueous MgSO4 which will be broken down into ions। ठीक है, तो जब कोई सॉलिड एक्सेस वाटर में डालते हैं, द एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग टू दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लिमिटेड वाटर में अगर ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सॉरी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। हाँ, MgSO4 solid with excess of water giving you aqueous, हाँ बराबर था, सॉरी। With 5 moles of H2O, it will form hydrated MgSO4 epsom बोलते हैं इसको, and then further water excess में डाल दिया तो we get the aqueous solution। तो इस केस में with 5H2O, this is the hydration enthalpy, and with the excess, this will be now called dilution, enthalpy of dilution। तो हेसेस लॉ के हिसाब से the solution का enthalpy will be equal to hydration का enthalpy प्लस द डाइल्यूशन का एंथैल्पी। तो इनमें से कोई भी एक अननोन रहेगा, वो आप इस हेसेस लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, Yes. अलग अलग एंथैल्पीज हैं, वो कैसे फाइंड करना है, उसके थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। एंड लास्टली वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। The spontaneity of reaction is studied by Gibbs-Helmholtz equation, which is given as delta G equal to delta H minus T delta S. So based on the enthalpy and the entropy consideration, the delta G का sign could be identified. For a spontaneous process, the delta G has to be negative or less than 0. So अब enthalpy and entropy can have the possibilities as plus plus, plus minus, minus plus and minus minus। So plus plus अगर रहेगा तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा। मतलब डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली एट हाई टेम्परेचर, मीनिंग such type of process will be spontaneous only at very high temperature। प्लस एंड माइनस में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। मतलब इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक and the entropy of the reaction is negative, reaction will never ever become spontaneous। माइनस प्लस में ये हमेशा नेगेटिव आता है, मतलब दिस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू बिकम स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। एंड माइनस माइनस में नेगेटिव होने के लिए लो टेम्परेचर होना जरूरी है। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक, प्लस प्लस है तो ये हाई टेम्परेचर पे ही स्पॉन्टेनियस होगा, माइनस माइनस लो टेम्परेचर पे ही होगा। प्लस एंड माइनस में पहले का साइन देखना है तो पॉजिटिव, कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। माइनस प्लस में पहले का साइन देखो तो माइनस आया, मतलब इट्स ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फिर इसी में अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लें तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो जाता है एंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुड बी फाउंड एज डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी को अगर 0 कर दे तो ये 0 इक्वेट करेंगे तो टी इक्विलिब्रियम एच अपॉन एस का रिलेशन आ जाएगा। ऑल्सो इक्विलिब्रियम पे we have a relation that is delta G naught becomes equal to negative RT ln of K, where K is the equilibrium constant। तो कई बार equilibrium constant आपको दिया रहेगा और रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी पूछी जाएगी। You have to just apply the formula negative RT ln of K equilibrium। Fine।
Yes. So this covers the major part of the thermodynamics. So I have tried to cover chemical, ionic and thermo का important parts. Now, इसके अलावा if you have any doubts, you can ask.